So I think we can start. We have started module 4 recently with algebraic structures. We have finished semigroup, group, subgroup and cosets. Today we are going to start with Boolean algebra. Okay. So Boolean algebra provides the operations and the rules for working with the set 0, 1. For example, there are primarily three operations. One is complement, Boolean sum, and product. Complement, sum is nothing, it's just OR operation, and product is nothing, it's just AND operation between Boolean variables. That is given over here. So you can see complement. So complement of 0 is 1, complement of 1 is 0, and OR operation is, you can also call it sum, and AND operation you can call product, okay? Then you have given to you is example where you have 1, 0, 0 plus 1, dot of 1 and 0, and sum of 1, 0 and 0 plus 1 and whole complement. Okay, so you have to solve this. You will get final answer as 0. Now, example 2, what would be the answer? Find that 1 dot 1 is 1, and 0.1 is 0, and 0 plus 0 is 0, and if you add 1 with any number either 0 or 1, you'll get 1. So final answer is 1. Now Boolean expressions and Boolean functions. Okay, let b is equals to 0 comma 1, then b to the power n is equals to x1, x2 up to xn such that xi belongs to B is a set of all possible tuples of 0 and 1. And variable x is called Boolean variable if it has only possible values 0 or 1. Okay. And a function b to the power n to b is called a Boolean function of degree n. We'll see. For example, over here, this is a Boolean function of degree 2. You have x and y, two variables, and these are the possible combinations 1, 1, 1, 0, 0, 1, and 0, 0. So these are all possible combinations of x and y, and final function is given to you which is 0, 1, 0, 0. Some random function is given to you. Neither or nor and operation is given. Okay. So this is example of a Boolean function. Now you have to find out a Boolean function represented by this. So can you do it? So this is having degree 3. 3 variables are there. So how many possible combinations of x, y, z? 8, है ना? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, and so on. Okay, and you can calculate x dot y plus z complement. You can calculate. So this is the final answer. This is clear, online students? Yes, ma'am. Okay. Now let's have a look at this. Now there are 16 different Boolean functions of degree 2. How 16? X and Y is given to you. There are only 4 possible combinations 1, 1, 1, 0, 0, 1, and 0, 0. Now F1 to F16 are the possible combinations that can generate, that are the type of functions that can be generated out of this X and Y, right? So first function is given to you all ones.
Second function is given to you 1 1 1 0 1 1 0 1, all possible 16 combinations, right? Besides this, there can be any other combination of 0 and 1? No, right? Okay, so similarly, if only one variable, because here we have variable x and y, if we have only one variable x, over here, so we have only one variable x, what are the possible combinations of functions? f1, f2, f3 and f4. 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Right? So for one variable, we have 4 possible combinations at the max. And if we have two variables x and y, we have at the max 16 possible combinations, right? Now, degree is given over here. Like if we have only one variable, we had 4 possible combinations. We have two variable, we have 16 possible combinations of functions that can be generated, right? And if we have 3, x, y, and z, 3 variables are there, then 256 possible combinations, and so on. Okay? This is given over here. Now, these are the identities. You already know them. So I'm just going to quickly, because you have already studied these identities. So first is law of double complement. So if you complement a number and then you again complement it, you will get the same number, right? Similarly, idempotent. Idempotent means if you add that number by itself, you will get that number. For example, 1.1 is 1, 0.0 is 0, and 1 plus 1 is 1, and 1.1 is also 1. Okay? And 0 plus 0 is 0. So that is idempotent. Identity law. If you add 0 to any number, you will get same number. If you multiply it by 1, you will get same number. Identity. Okay. Then domination law dominates, 1 dominates any number. X can be 0 or 1. If you add 1 to it, what you will get is 1. Okay. Similarly, if you multiply any number by 0, you will always get 0. Okay, then commutative, you know, associative, you know, distributive, you know. De Morgan's law, one of the most important law that you'll have to remember is De Morgan's law. This is very, very important, and it's asked in many exams in future, maybe in competitive exams. So this is very important. So x dot y whole bar is equals to x bar plus y bar. So x product is reversed to sum, and sum is reversed to product. So x plus y whole complement is equals to x complement dot y complement. So this is De Morgan's law. Okay? If you complement a product, you will get sum, and if you complement a sum, you will get a product. Okay? Then absorption law. So x plus xy is equals to x, right? Why? Because you can take out x common, and 1 plus y is 1. So that is x. Similarly, x dot x plus y is x. Then unit and then 0. Okay. So these are all the laws that you need to remember while solving any function, Boolean function. Then you have to, in exam, valid means left hand side equals to right hand side. So left hand side is given to you x, y plus z, and right hand side is given to x, y plus x, z. And you have to find out all the possible combinations and check whether these two are equal or not. Okay. Clear everyone? अभी तक किसी को कोई doubt है? No, ma'am. यहाँ पे किसी को? Okay, let's see. Representations. There are two representations of Boolean functions जो कि बहुत ज़्यादा important है, और K-map है बहुत ज़्यादा important है. ठीक है? इसके questions आप खुद जाके लगाइएगा, बहुत सारे questions लगाइएगा, तब जाके you'll इसमें आपको error होने के chances बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है? तो first देख लेते हैं SOAP and second is POS. SOAP is sum of product and POS is product of sum. किसी भी बुलियन फंक्शन को हम दो तरह से लिख सकते हैं, आइदर सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सम.
ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि यू हैव प्रोडक्ट्स, दैट इज AB is a product, A complement CD is a product, ACD is a product, and you are summing them. Okay, so sum of products. Next is POS, where you have products of sums. So sum is A plus C, A plus D, A complement plus B plus D, B plus C complement plus D. These are all sums, and you are making their product. Okay, so these two are the representations. So first thing in exam, if it's not given to you whether it's a soap or a pose, you will have to identify this using this symbol sigma. So if sigma is there, this is soap. If pi, this pi is there, then it is pose. Okay, you have to, this will not be specifically mentioned in the exam. You have to, this is by default. ठीक है, अगर सिग्मा है तो वो सोप है, और पाई है तो वो पोस है. और जनरली हम इसको स्मॉल एम लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल एम पोस्ट के केस में. ठीक है, तो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस. अब इसे सॉल्व करने के लिए वी हैव अ मेथड कॉल्ड के मैप, क्योंकि हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है. यहाँ पे 15 तक है वैल्यूज, तो कितने वेरिएबल्स होंगे? ए बी सी डी 4 हो सकते हैं, है ना. 15 इज 1 1 1 1 मैक्सिमम, है ना. 4 वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो 4 वेरिएबल का आप फिर भी सॉल्व कर पाओगे खुद से. बट 5 वेरिएबल्स हो गए, 6 7 8, जैसे जैसे वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए वी हैव के मैप्स. Okay. So K-maps is a convenient tool for representing Boolean functions up to 6 variables. K-maps form the basis of useful heuristics for finding minimum of sum of products and minimum of product of sum. Why minimum? क्योंकि इस फंक्शन को, जैसे ए बी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल होते, ठीक है, और कोई मेरे पास फंक्शन होता है ए बी प्लस बी सी, ठीक है, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ए बी सी प्लस ए बी सी बार. ए बी को मैं ए बी सी प्लस ए बी सी बार लिख सकती हूँ, है ना. 3 वेरिएबल्स में एक ही बात है. तो हम यहाँ पे ये मिनिमम फॉर्म है, ए बी प्लस सी डी इज मिनिमम फॉर्म. ठीक है, अगर हम इसको और खोलेंगे तो हम इसको 4 वेरिएबल्स में, हर एक वेरिएबल को 4 वेरिएबल्स में लिख सकते हैं, है ना. तो इसीलिए मिनिमम लगाते हैं आगे कि हमें मिनिमाइज करने हैं अपने एक्सप्रेशंस को. हमें इतने सारे वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें मिनिमम वेरिएबल चाहिए. ठीक है, तो के मैप क्या करता है, आपका मिनिमाइज कर देगा किसी भी एक्सप्रेशन को. अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है ए बी सी डी ए प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बार बी सी डी प्लस ए बी सी बार डी, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है, उसको आप के मैप से मिनिमाइज कर सकते हो. ठीक है, मिनिमाइज करके आप उसको किसी एक या 2 वेरिएबल में ला सकते हो. ठीक है, इसीलिए हम के मैप यूज करते हैं. तो n वेरिएबल के मैप हैज 2 to the power n सेल्स. अगर एक वेरिएबल, एक का नहीं 2 का वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल है आपके पास तो 2 to the power 2 4 सेल्स होंगे. ये हम आगे देखेंगे कैसे बनता है के मैप. ओके, देन के मैप सेल्स आर लेबल्ड विद कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल रो, ये भी हम आगे देखेंगे. Okay, so आगे let's see. So this is example of a K map. So नीचे वाले figure number D, E, F और G देखो. These are all representations of K map. ऊपर वाला जो है वो representing Venn diagram. Okay, यहाँ पे last figure G figure देखो, इसमें अगर आपके पास 2 वेरिएबल थे ए और बी, तो आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1. ठीक है, तो आपके पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो 4 सेल्स होंगे. ठीक है, जहां जहां सेल में 1 होगा फंक्शन में, उस सेल में आप 1 लिख दोगे, जहां जहां पे 0 होगा वहां पे आप 0 लिख दोगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेल हमने कैसे डिसाइड किया, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इस तरह से हमने हर एक फंक्शन हर एक रो को मैप कर रहे हैं. अब यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है कि A इज रिटन अबव एंड B इज रिटन बिलो. ठीक है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 0 1.
सो 0 1 इज दिस। यहाँ पे अगर 1 होता तो हम यहाँ पे 1 लिख देते। ठीक है, क्लियर। कहीं कहीं पे बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा कि ए नीचे लिखा होता है, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा। ठीक है, तो वैल्यूज अपोजिट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने 0 2 1 3 लिखा है, तो आपको कहीं कहीं पे 0 1 2 3 भी मिल जाएगा, क्योंकि वो ए और बी को उन्होंने स्वैप कर दिया होगा। ठीक है, अब ये तो सोप की बात कर रहे थे हम, ये जो मैं बता रही थी ये सोप बता रही थी। अभी पोस्ट में सब चीजें उल्टी हो जाती हैं। पोस्ट में 1 की जगह पे 0 लिखेंगे, 0 की जगह पे 1 लिखेंगे। ठीक है, ओके, सो दिस इज के मैप फॉर 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में कैसे करेंगे? यहाँ पे ए बी आ गया और यहाँ आ गया सी। ओके, सो ए बी के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ हमने 1 0 क्यों नहीं लिखा? हम तो ट्रूथ टेबल में ऐसे लिखते हैं ना, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। हमने यहाँ 1 1 पहले लिख दिया और 1 0 बाद में लिखा। इसका रीजन ये है कि जब भी हम एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहे हैं, हम हमेशा किसी एक बिट को चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि 0 0, फिर हमने ये वाली बिट चेंज कर दी, यहाँ आ गया 0 1। अब अगर हम यहाँ 1 0 लिखते हैं तो दोनों बिट चेंज आती, इसीलिए 0 1 के बाद हमने लिखा 1 1। ठीक है, तो कौन सी बिट चेंज होगी? लेफ्ट बिट। ठीक है, फिर 1 1 के बाद हमने लिखा 1 0, तो कौन सी? राइट वाली बिट चेंज होगी। अब आप देखोगे फोर्थ सेल और फर्स्ट सेल, इन दोनों में एक बिट चेंज है। फोर्थ और फर्स्ट में देखोगे तो भी एक ही बिट का चेंज है। ठीक है, तो इसी तरह हम यही कन्वेंशन फॉलो करते हैं, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है, जब हमारे पास तीन वेरिएबल अगर आ जाएंगे, तो उस केस में भी हमें ये ध्यान रखना है कि एक ही बिट चेंज होनी चाहिए जब हम नेक्स्ट सेल में मूव करें। ठीक है, फोर्थ सेल, सो सबसे लास्ट वाला सेल और फर्स्ट सेल में भी एक ही बिट चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 6 आ गया। देखो 6 मीन्स 2 के बाद 6 आ गया, 1 1 एंड 0, 1 1 0 इज 6। ठीक है, 1 0 0, तो 1 0 0 इज 4। तो ऐसे होता है 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7। यही नॉर्म रहेगा हर जगह पे। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. सो दिस इज के मैप फॉर 4 एंड 5 वेरिएबल्स। ऊपर वाला जो के मैप है दिस इज फॉर 4 वेरिएबल्स, नीचे वाला जो है वो 5 वेरिएबल। अब यहाँ पे ए लिखा है, पीछे वाले एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। यहाँ पे ए लिखा है, तो दैट मीन्स ये पूरा ए बार है। ठीक है, 0 और 2, 0 और 2 में ए बार आता होगा। देखो आता है, यहाँ पे ए में 0 है और यहाँ पे ए में 0 है। ठीक है, तो ये दोनों सेल्स ए बार वाले हैं, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट वाले हैं, और ये दोनों सेल्स ए वाले हैं। इसी तरह ये वाला सेल, ये चारों सेल जो है सी वाले हैं, और ऊपर वाले चारों सेल्स सी कॉम्प्लीमेंट वाले हैं। ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट मीन्स लास्ट थर्ड बिट जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो 1 में देख लो, सॉरी 0 0 0 में देख लो तो लास्ट बिट इज 0। 0 1 0 में देखो लास्ट बिट इज 0, सो दैट इज सी बार, सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसी तरह ये 4 वेरिएबल्स वाला है, इसमें ऐसे रहता है 0 1 3 2 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से 8 9 10 11, ये वाली रो, ये वाली रो, फिर ये वाली, फिर नेक्स्ट, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। अगेन सिंबल वही रहेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0। ये ए बी के लिए है, सी डी के लिए ये वाले हैं। ठीक है, इसी तरह 5 वेरिएबल वाले में 2 बन जाते हैं, क्योंकि 5 वेरिएबल में कितने हो गए? 32 हो गए सेल्स, है ना। 32 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 5 वेरिएबल के, तो उसके लिए ए बी सी डी ई। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, ओके, सो यहाँ पे 0 0 0 0, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 3 वाले लिखे हैं, और यहाँ पे सारे 2 वाले लिखे हैं। ठीक है, क्लियर है? इन सब में देखोगे तो भी एक बिट का ही चेंज होगा। ओके, 6 वेरिएबल्स एंड सो ऑन। ओके,
अब m को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सिग्मा m को, दैट इज सोप को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो प्लेस अस इफ एम आई इज द मिन टर्म, तो सोप को हम मिन टर्म निकालते हैं सोप में, पोस्ट में हम मैक्स टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो सोप में इफ एम आई इज द मिन टर्म ऑफ एफ, देन प्लेस 1 इन द सेल आई ऑफ के मैप। तो के मैप में हम 1 प्लेस करेंगे जहां जहां पे वो वैल्यू प्रेजेंट है। 0 प्रेजेंट है तो 1, 3 प्रेजेंट है तो 1, 5 प्रेजेंट है तो 1, रेस्ट बाकी सब में 0 फिल कर देंगे, ठीक है। और एम आई इज अ मैक्स टर्म ऑफ एफ, अगर मैक्स टर्म की बात करेंगे तो हम 0 प्लेस करेंगे जहां पे वो प्रेजेंट है। जैसे कि 1 प्रेजेंट है तो हम वहां पे 0 लिख देंगे, 2 प्रेजेंट है वहां पे 0 लिख देंगे, 3 प्रेजेंट है वहां पे 1 लिखेंगे, 3 प्रेजेंट नहीं है, जहां पे प्रेजेंट नहीं है वहां 1 लिखेंगे, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्या चीज लिखी है, जो मिन टर्म है 035 का, दैट इज सोप है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज मैक्स टर्म है 1 2 4 6 7। इसके अलावा कोई रिमेनिंग तो है नहीं, 3 वेरिएबल में 0 to 7 जाता है, 3 वेरिएबल अगर है 0 0 0 0 0 1 अप टू 1 1 1, दैट इज 7, है ना। तो अगर हम मिन निकालेंगे तो 035 का मिन इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ 1 2 4 6 7। आप चाहे अलग अलग दोनों का के मैप बना के सॉल्व करके देख भी लेना तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। पोस्ट फॉर्म अगर आप 1 2 4 6 7 की निकालोगे और सोप फॉर्म अगर आप 035 की निकालोगे तो वो सेम आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम उसे सोप को पोस्ट में कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट करते टाइम, तो एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पे है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट इन्होंने किया है। ओके, सो सबसे पहले 035 देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो 0 में हमने 1 लिख दिया, 3 में 1 लिख दिया और 5 में हमने 1 लिख दिया, ठीक है। और पोस्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी है, ये लिखी है पोस्ट फॉर्म। तो 1 2 4 6 7, तो 1 2 4 6 7 इसमें हमने 0 लिख दिया। तो के मैप सेम है ना, दोनों का के मैप सेम है। 1 हमने उसमें यहाँ पे लिखा था, 0 पे 3 पे और 5 पे 1 लिखा था, ठीक है, 1 एंड द सेम थिंग, ठीक। और क्लियर है दोनों फॉर्म्स। तो ऊपर वाला इज सोप फॉर्म, नीचे वाला पोस्ट फॉर्म है। ओके, सो नेक्स्ट आपको के मैप दिया है। आपको लिखना है मिन टर्म और मैक्स टर्म, यानी सोप भी लिखना है और पोस्ट भी लिखना है। सोप वाला आपको दिया है 0 3 5 7 10, तो 0 पे 1 लिख दिया होगा, 3 पे 1, 5 पे 1, 7 पे 1, 10। ये वाला क्वेश्चन आप कॉपी में नोट डाउन करो और खुद से करो। फिर आप मुझे इसके बाद इसके टर्म्स भी बताओगे कि क्या आएगा। जैसे कि फर्स्ट टर्म इज ए बी क्यू जी है, तो ए बार बी बार क्यू बार और जी बार प्लस, ठीक है। सेकेंड इज 3, कहाँ पे है, दिस वन, तो आएगा क्यू जी ए बार बी बार, है ना। तो प्लस, क्योंकि हम सोप लिख रहे हैं तो प्लस करते जाएंगे सारे टर्म्स को, ठीक है। तो फाइनल आंसर बताओ इसमें, इसका टर्म्स में क्या आएगा लेफ्ट वाले का। ए बार बी बार प्लस, सॉल्व करके बता रहे हो, फाइनल सॉल्व करके बता रहे हो, ऐसे ही बता रहे हो।
क्वेश्चन नोट किया सबने? आप लोग मुझे अब टर्म्स बताओगे कि क्या आएगा? आप क्या बता रहे थे? ए बार, ए बी दोनों के ऊपर बार, ओके। ए बी दोनों के ऊपर बार, ओके। और प्लस 2G दोनों के ऊपर बार, यही आएगा। यही आ रहा है सबका? अभी मैंने सॉल्व करना नहीं बताया, तो आप मुझे फाइनल बताओ कि ऐसे अगर हम टर्म्स वाइज लिखेंगे तो क्या आएगा? ए बार, बी बार, क्यू बार, जी बार, फर्स्ट का तो ये आएगा, है ना? ऐसे बताओ। फर्स्ट आएगा ए बार, बी बार, क्यू बार, जी बार, प्लस ट्री का क्या आएगा? ये है ना यहाँ पे, तो ये तो क्यू है हमारा, और इधर है ए बार, बी बार, तो आएगा ए बार, बी बार, क्यू और जी, है ना? ए बार, बी बार, क्यू एंड जी। नेक्स्ट बताओ, 5 का बताओ। हम्म 5 बताओ कहाँ है? ये तो क्या आएगा? ए बार बी, क्यू बार जी। बिल्कुल, ए बार बी, क्यू बार जी, प्लस। ठीक है, इसी तरह से हम अप टू 15 तक सबको ऐड करके लिख लेंगे, और जब हम इसे फाइनल सॉल्व करेंगे तो जो इन्होंने बताया था शायद वही आ जाएगा, है ना? ए बार, बी बार प्लस क्यू बार, जी बार। तो अभी मैंने सॉल्व करना आपको नहीं बताया, ठीक है? सबको क्लियर है ये चीज? अब इसी तरह पोस्ट वाले का भी देख लेते हैं, ठीक है? हमारे पास ये है पोस, ये तो हमारा सोप था, ठीक है? अब हम पोस का देखते हैं। ओके, पोस का बताओ। फर्स्ट टर्म इज 1, तो 1 ये है ना यहाँ पे, तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे? मैम ए बार प्लस बी ब्रैकेट डॉट क्यू बार प्लस बी। बिल्कुल, जी ए बार प्लस बी प्लस क्यू बार प्लस जी बार, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि हम पोस्ट लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे हम? नेक्स्ट टर्म इज 2, 2 का क्या हो जाएगा? कहाँ है 2? ये रहा, तो इसका हो जाएगा प्लस, सही है। ए बार प्लस बी बार प्लस क्यू प्लस जी बार, राइट? नेक्स्ट 4, ठीक है? क्लियर है ये सबको? सो ऊपर पोस्ट क्लियर है ना दोनों? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो, क्योंकि अभी मैं सॉल्व हम करते हैं के मैप के थ्रू, दूसरा तरीका तो ये है कि आप इस पे आइडेंटिटी लगाओ कि इन दोनों में से ए बार बी बार कॉमन ले लो, क्यू बार कॉमन ले लो, फिर क्यू प्लस क्यू बार रह जाएगा, उसको 1 कर दो। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते जाओ आइडेंटिटी से। एक तरीका तो वो है, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए हम के मैप से सॉल्व करेंगे, इसे आगे देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है?
ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसी तरह से ओके। सो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ये तीनों आप नोट कर लो। कल क्लास में मैं पूछूंगी आप लोगों से, तीनों क्वेश्चंस नोट कर लो। आपको के मैप बना के लाना है तीनों का, ठीक है? के मैप मिनिमाइज कैसे करना है फंक्शन को, ये हम कल देखेंगे, ठीक है? पहले वाला सोप है कि पोस है? सोप है ना? दूसरे वाला पोस, और तीसरे वाला पोस, ठीक है ना? इसका के मैप बनाओ सब लोग, थर्सडे को क्लास है। सबकी कॉपी में तीनों के मैप होने चाहिए, ठीक है?